Welcome all for the series of lectures of hydrology and water resources engineering. We are discussing about the irrigation. In the previous lecture, we had seen in details about the sprinkler irrigation method. It's a various component parts. Then their role, that is for what they are used. Then different aspects of that, those who had discussed, and then started for the lift irrigation method. Okay, so we will have a quick review of that, and then we will start for the next part. So today we are going to discuss the remaining part, that is from the irrigation methods, that is subsurface irrigation method that was remained from my side. That also we are going to cover, but before proceeding to that, I want to show the some of the pictures those I have taken from the internet related to the sprinklers, that is a rain gun which we wanted to show over here. Okay, so this is nothing but the rain gun which we have discussed last time. That is a single sprinkler used to cover acres of land. 1 acre, 1.5 acre पर्यंत land. Single unit of a sprinkling used to cover the whole dimension. This is without having an hammering effect or hydraulic effect, we can say, of the that spindle. हे तर काय असते, पुढच्या बाजूला एक स्पिंडल असतो, आर्म असतो एक, तो काय करतो, बरोबर हा जेट ब्रेक करतो. आपण त्याला जेट ब्रेकर असं सुद्धा म्हणतो. Without actuating that, this is the diameter, sorry, this is an a radius which has been covered by this jet. Okay, now just imagine that for having that much distance, or to cover this much distance, how much amount of pressure will be required to have over here. And to maintain that means, if you want to change the, here we are changing the energy. Here we are changing the energy from the pressure energy to the kinetic energy, we can say kinetic energy to the pressure energy. Hydraulic energy conversion we are doing over here. So when it does so, when it happens so, at that time there occurs an a backwater pressure. म्हणजे इथं तुम्ही बऱ्याच वेळा अनुभव घेतला असेल बघा. जर का आपण एखादी पाईप वगैरे पाण्याच्या हातामध्ये पकडला आणि जर का खूप प्रेशर येत असेल, तर तो पाईप काय होतो, बऱ्याच वेळा आपल्या हातातून बॅक साईडला, रिव्हर्स साईडला आपल्याला स्ट्रेच करतो, म्हणजे पाठीमागे फोर्स अप्लाय करतो, रिव्हर्स फोर्स अप्लाय करतो. दॅट इज अन एरो, काय म्हणतो आपण त्याला, आय फॉरगॉटन द नेम, मला आठवलं की तुम्हाला सांगेन मी. सो लाईकवाईज, किंवा आपण बऱ्याच वेळा पाहतो, जर का आपल्याकडे एखादा पाईप असेल पाण्याचा वाहणारा, आणि तो जर का आपण आहे तसं जर का जमिनीवरती टाकला, तर त्या केसमध्ये जर का प्रेशर वाढवला, तर तो पाईप हा सरळ न राहता, स्ट्रेट न राहता, तो बऱ्याच वेळा अशी नागमोडी वळण घेत राहतो. तो नागमोडी वळण का घेतो, कारण त्या केसमध्ये काय होतं, जो प्रेशर, एनर्जी कन्व्हर्जन जे होत असतं, ते एनर्जी कन्व्हर्जन होत असताना बरोबर तो पाईप जो असतो तो स्वतःला त्या डिरेक्शनला अलाइन करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच काय तुम्हाला सांगायचं होतं, तर या केसमध्ये हा जो याचा आपल्याला पूर्णपणे सेटअप दिसतोय, व्हॉट एव्हर द mechanism, truss we are, sorry, a frame we are finding over here, it is nothing but the foundation frame. Here this is a submain line, and this is nothing but the sprinkling unit, that is a which you have used here, that is a rain gun, we can say. And to hold this at a higher pressure, म्हणजे आपल्याला काय करायचं इथं ते, we have to hold it at a higher pressure, म्हणजे जास्त प्रेशर येत असताना आपल्याला ते बरोबर आहे त्या पोझिशनला ठेवायचं आहे. बिकॉज काय होतं इथं बऱ्याच वेळा, आता इथं जर का आपण बघितलं तर इथं ही शेताची बाउंड्री दिसते आपल्याला, इथं फार्मची बाउंड्री आहे, आणि इकडच्या साईडला म्हणजे टुवर्ड्स अपस्ट्रीम साइड वी आर फाइंडिंग अप टू दिस ट्री ऍज अ क्रॉप. इकडच्या बाजूला आपल्याला एक क्रॉप दिसतंय, बरोबर. मग जर का हे क्रॉप आपल्याला इरिगेट करायचं असेल वन साइडेड, तर त्या केसमध्ये इट इज रिक्वायर्ड टू हॅव अन रोटेशन ऑफ दिस रेन गन in a 180 degree, means from this point to this point. So rotation is required to be in a 180 degrees. So for this condition, means for to achieve that, we will be required to hold the mechanism at a proper place. आता बऱ्याच वेळा काय राहतं कंडिशन, की आपल्याला पूर्णपणे 360 डिग्री मध्ये, म्हणजे काय, we have to irrigate the area in this direction also, means towards the downstream side also. जर का आपण हा upstream portion घेतला, तर हा आपला downstream portion असणार आहे. We used to require to irrigate the downstream portion also. मग त्या केसमध्ये काय होतं, this rain gun used to operate in a 360 degree, म्हणजे 360 डिग्री मध्ये त्याचं रोटेशन होतो, and it used to achieve the irrigation. Okay,
ओके धवल, दॅट्स गुड. आय विल शो दॅट. मग त्या केसमध्ये काय होतं की हा पूर्णपणे एरिया हा आपला इरिगेट होतो. आता आपल्याला इथे दिसतंय मेकॅनिझम जर आपण बघितलं तर दॅट इट इज हॅव्हिंग अन अ ट्रॅजेक्टरी अँड नथिंग एल्स देन दॅट. This is nothing but a trajectory. Now you may have a question in your mind that if this is an a trajectory, the whole water is going or it is passing towards the next end. म्हणजे हा पूर्णपणे जेट आहे हा पुढच्या एंड पर्यंत जातोय. Means the water will be supplied to this point only where it is going to fall over the ground. म्हणजे काय होणार आहे, इथून जमिनीवरती पडणार आहे. इट मीन्स दॅट दिस एरिया विल नॉट बी गेट इरिगेटेड. हा मधला जो पट्टा राहणार आहे या दिस पोर्शन विल नॉट रिसीव द वॉटर. To have that or to achieve the water for this area, we have to actuate this flange or flange, we can say that. I will show you in a next diagram. Here we are finding now. Here this flange is operating now. म्हणजे काय असतंय, पुढच्या बाजूला साइड एक प्लेट असते, त्याला लोखंडी प्लेट असते, आयर्न असते किंवा बऱ्याच वेळा आपल्या ह्याचं असते तांब्याची सुद्धा असते बऱ्याच वेळा, परंतु वेट असतं त्याला बऱ्याच ऍडजस्ट केलेला असतो आणि स्प्रिंग बॅलन्स लावलेला असतो. जेणेकरून ऍक्च्युएट झाल्यानंतर काय होतं की जेट वरती ते स्ट्राईक झालं की बरोबर पुन्हा काय होणार, ते फ्लॅप होणार, साईडला येणार. जेट वरती स्ट्राईक झालं की काय होणार, तिथं जेटची प्रेशर एनर्जी ब्रेक होणार आणि पूर्णपणे जे पाठीमागून जो जेटचा फोर्स होता तो जेटचा फोर्स काय होतो, ब्रेक होतो. त्याच्यामुळे वॉटर ड्रॉपलेट्स इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग इन अ फॉरवर्ड डिरेक्शन दे स्टार्ट्स ड्रॉपिंग ओव्हर देअर. ते काय होतं तिथं बरोबर ते नंतर ना ड्रॉप व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे तिथं जो काही आपला अंडरलाइंग एरिया आहे, वॉट एव्हर द अंडरलाइंग एरिया इज देअर इन दॅट अंडरलाइंग एरिया यूज टू रिसीव्ह द वॉटर. ओके, म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला हे पूर्णपणे इरिगेशन करता येतं. म्हणजे हे काय झालं, हे फक्त इथल्या पोर्शन मधलं झालं. लाईकवाईज वी यूज टू इरिगेट द होल एरिया इन द सेम फॅशन. ओके, और द फॉग वी कॅन से. म्हणजे ज्या वेळेस हा जेट जो मुव्हिंग जेट आहे तो जेट पूर्णपणे स्टॉप होणार, हा कंटिन्युअस जेट झाला. आता नाव इट विल बी ब्रेक, इट हॅज बीन गॉट ब्रोकन, अँड व्हेन इट गेट्स ब्रोकन ऍट दॅट टाइम the water is to go on a sprinkling and sprinkling. This is a continuation, you will get the idea. I will go once again. Yeah, see it how it actuates. Yeah, that's the breaking of the jet and the formation of the fog, we can say. This is a continuation, it is high pressure, we can say. And when it cuts it, at the time of the cutting the jet, it results in a, yeah, you can see over here, it results in a spreading of the water over here. Okay, so here we can say that the whatever the amount of the water is coming out from the jet, it's having a higher velocity, and to achieve that, a higher velocity and high head, we can say, and to control that whole mechanism, we need to have a firm foundation for that. Okay, so this is an for the रेन गन, वी कॅन से. अँड हे जे फ्लॅज आहे की नाही, हायड्रोलिकली ऑपरेटेड राहतं, हे बऱ्याच वेळा साईडने दिलेलं असतं. ते मॅन्युफॅक्चरर प्रमाणे ते वेगवेगळं असू शकतं. ओके, layout of lift irrigation scheme with a river as a source of water. I think in the previous class we have discussed about the intake well, jack well, and some part of the distributaries. So here the source is a river, general source we have taken over here. In it may happen that the farmer used to have the source as a well. बहुत बार क्या होता है, खेती में जब खेत रहता है तो खेत में फार्मर ने डगआउट किया हुआ जो कुआं रहता है वो कुआं रहता है, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, बोरवेल भी रहता है. Okay, so the source may be the borewell, may be the dugout well, that is open well, or it may be the stream, or it may be the river, perennial river, we can say. And here the source is nothing but the river, and in the river only, at the main course, we can say, at its main alignment line, we can say, the intake well has been dug. जी इंटेक वेल जी आहे आपली, जिच्यामधून आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे, ती बरोबर नदीच्या सेंटर लाईनला खोदलेली आहे, तिचं डिगिंग केलेलं आहे. व्हाय ॲट अ सेंटर लाईन? बिकॉज if the water level is going to reduce in the river, in that case there should be a water in the well.
म्हणजे नदीमधलं जर का पाणी कमी झालं तर ते आपल्या विहिरीमध्ये यायला पाहिजे, म्हणून आपण काय केलं ते आपल्या जी विहीर वेल जी आहे ती वेल आपण कुठे घेतली, बरोबर रिव्हरच्या सेंटरला घेतली. तर बऱ्याच वेळा काय होतं, द फार्मर यूज टू हॅव एन ओनली पंप ॲट द बँक ऑफ द रिव्हर अँड ही यूज टू गो फॉर लिफ्टिंग द वॉटर. बट द associated disadvantages or the drawbacks in that scheme is that when during a flood condition it may happen that the whole mechanism, that is the pump, then it's a prime mover, then it's a connecting pipes, all those used to go along with the flood, ते बरोबर पाण्याबरोबर ते वाशड होऊन जाऊ शकतं. आणखी दुसरी कंडिशन काय असते की if we have an intake well then at the center of the river, then we doesn't go for a provision of the pumping house or the pumps at the well itself. म्हणजे जर का आपली नदीच्या रिव्हरच्या सेंटरला जर का विहीर असेल तर त्या विहिरीवरती आपण डायरेक्टली पंप प्रोवाइड करत नहीं है, यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारा जो कुआं रहता है वो नदी के सेंटर में रहता है तब उसके ऊपर डायरेक्टली हम पंप नहीं प्लेस करते. क्यों नहीं प्लेस करते? क्योंकि जब पानी बढ़ेगा, जब पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल जो है वो बढ़ेगा, हाई फ्लड लेवल तक जाएगा, तब क्या होगा, पूरा के पूरा ये सिस्टम हमारा इनंडेट हो जाएगा. तो उसका सप्लाई, जो सप्लाई यूनिट होगा, स्टार्टर रहेगा, मेन स्विच रहेगा, वो सब के सब क्या होगा, पानी में जाएगा और शॉर्ट सर्किट होके वो जल जाएगा. सो टू अवॉइड दैट, what we used to do is that generally intake well is provided only to collect the water, and from that we used to take the water to the another river which is going which generally used to dug nearby the bank of the river where the elevation is हायर देन द हाई फ्लड लेवल. यानी कि उसके साइड में, यानी कि नदी के एक किनारे पे हम क्या करते हैं, एक दूसरा कुआं खोदते हैं. उसका जो इलेवेशन जो रहता है, जो लेवल पोजीशन, जो उसका जो पोजीशन जो रहता है, वो पोजीशन एग्जैक्टली जो हमारा हाई फ्लड लेवल जो रहता है, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारा क्या बोलते हैं, बाढ़ जो बोलते हैं हम, वो बाढ़ का जो लेवल रहता है उसके ऊपर रहना चाहिए, ताकि यदि रिवर में, नदी में बाढ़ आ भी गई तो क्या होगा, वाटर लेवल जो है रिवर का, फ्लड का, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा. यानी कि जो भी हमारा पंपिंग यूनिट्स, उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो हाउसिंग वगैरह जो भी है, वो पानी में नहीं डूबेंगे. ओके. सो दूसरा जो कुआं हमने साइड में निकाला, जो हमने डिगिंग किया उसका, उसको क्या करते हैं, उसको हम पानी जो हमारा मेन कुआं जो है रिवर में, रिवर के सेंटर में जो है उससे ले लेते हैं, और जो कनेक्टिंग पाइप जो रहता है दोनों के लिए, उसको हम इनटेक पाइप बोलते हैं. यानी कि इनटेक पाइप का जो स्टार्टिंग जो रहता है, कहाँ से, हमारे मेन रिवर में, जो हमने रिवर के सेंटर में जो कुआं खोद हमने डिगिंग किया है, उसके एग्जैक्टली बेड लेवल से वहां से स्टार्ट होता है, और उसको जेंटल स्लोप रहता है, और बाय जेंटल स्लोप इट हैज बीन कनेक्टेड, or it will be connected to the next well. It is another well which is adjacent to the main well. Then we used to keep some freeboard or some gap below this connecting pipe. Why we used to do so? Because if there is a debris coming inside it, if the debris are coming inside it, though we are going to provide the screen filters, screening and all those things, here we used to provide the wire mesh. वायर मेश कहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, जो इसका इनलेट रहता है पानी में अंदर आने का, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, सर्कुलर फ्रेम रहता है ऊपर, बहुत बार वो कंक्रीट का ही रहता है. पहले के जमाने में कैसा रहता था, मैसनरी का, रबर मैसनरी रहती थी, राउंड ऐसे बनाते थे. अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली सर्कुलर रिंग डालते हैं, यानी कि जो हमारा स्लैब जैसा रहता है वैसा हम यहाँ पर रिंग डालते हैं, और उसका जो ओपनिंग रहता है वो एग्जैक्टली अपोजिट टू द फ्लो रहता है, कि फ्लो यदि इस साइड से है तो ओपनिंग यहाँ से रहता है, और ओपनिंग के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे वायर मेश बिठाते हैं, ताकि यदि डेब्रिस कुछ आए, ज्यादा कुछ मिट्टी आई, तो बहुत बार क्या होता है, यानी कि रेनी सीजन में, यानी कि जब बारिश बहुत होती है, तो बहुत सारी डेब्रिस पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, देन रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, दे यूज्ड टू मूव along with the water due to the higher velocities. उसके साथ और भी पौधे रहते, सॉरी ब्रांचेस रहते हैं ट्रीज के वगैरह, वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली हमारे कुएं में आ सकते हैं. तो वो अंदर उसको उसको वो सब जो डेब्रिस है उनको अंदर ना आने के लिए यहाँ पे हम वायर मेश, फिल्टर वायर मेश बिठाते हैं एज एन फिल्टर, सो दैट द जनरली और somewhat clear water will come inside it, but it not will be all clear water. यानी कि जो भी पाणी आएगा अंदर, उसमें थोडासा तो मिट्टी रहेगी ही, त्याला आपण मराठीमध्ये गाळ असं म्हणतो, थोड़ी सी तो मिट्टी रहती ही है. तो क्या होता है, वो मिट्टी आई तो उसको सेटल करने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा
कुआं नीचे खोदा है और डिगिंग किया है उसका, और जो पाइप जो है वो यहाँ से लगा है, ताकि पानी अंदर आने के बाद उसको सेटलमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा। ओके। और बाद में हमने क्या किया, बाद में यहाँ से पानी यहाँ पे लेने के बाद भी, जहां से हम डायरेक्टली अब पंपिंग कर रहे हैं पंप डाल के, वहां पे भी हमने थोड़ा सा डेप्थ रखा है। क्यों हमने डेप्थ रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यदि पानी में कुछ डेब्रिस आए तो भी यहाँ पे वो सेटल होने चाहिए। दिस इज द पर्पज एंड नथिंग एज दैट। और दूसरा ही पर्पज क्या रहता है, जो हमारा पंपिंग पाइप जो पंपिंग वेल जो रहता है, उसके पाइप जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है, उसका जो मेन का जो पाइप रहता है, कनेक्टिंग पाइप, जो पंप के सेंटर से रहता है, और यह यहाँ के नीचे उसको स्ट्रेनर रहता है, त्याला मराठीमध्ये आपण गाडगं असं म्हणतो, स्ट्रेनर, उसमें फ्लैंज वगैरह रहता है। तो वो स्ट्रेनर जो रहता है, फुटबॉल एंड स्ट्रेनर, वो उसका जो पोजीशन रहता है वो जनरली उस इस लेवल से थोड़ा सा नीचे रहता है। क्यों नीचे रखने का, क्योंकि यदि पंप शुरू कर दिया हमने और जो वाटर लेवल आया था ऊपर में वो कम हो गया, क्योंकि जो पानी अंदर आ रहा था उसका मैग्नीट्यूड अभी कम है, उसका जो फ्लो रेट है वो कम है, किससे, जो पानी हम ऊपर ले रहे हैं उससे। तो क्या होता है उस सिचुएशन में, पानी पंपिंग के लिए कम पड़ता है, तो उसको एडिशनल हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए। तो वो एडिशनल स्टोरेज कहाँ से रहेगा, यहाँ पे जो हमने डेप्थ ज्यादा रखा है, यानी कि ये पाइप से, उससे हमें वो पाइप पानी मिलेगा। और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा दूसरा वाला कुआं है उसे हम जैकवेल बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, जैकवेल बोलते हैं। सो जैकवेल के ऊपर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पंपिंग हाउस है, पंपिंग यूनिट है, पंप्स है, उसके एसेसरीज है, स्टैंड बाय पंप्स रहते हैं, वो सब के सब हम यहाँ पे रखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें पानी लिफ्ट करना है और उसका एलिवेशन जो है वो हमारा हाई फ्लड लेवल से ऊपर है, ताकि क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि रिवर का पानी बढ़ भी गया, यानी कि फ्लड भी आ गया, तो भी क्या होगा, उसका फ्लड का हायर एलिवेशन जो रहेगा वो हमारे जो पंपिंग हाउस है, पंपिंग यूनिट से नीचे ही रहेगा। ओके। सो बाद में क्या रहता है, इसके यहाँ पे पंपिंग यूनिट हमने इंस्टॉल कर दिया, उसका सब स्टार्टर्स रहेगा, मेन स्विच रहेगा, वो सब इलेक्ट्रिक कनेक्शंस वगैरह सब के सब यहाँ पे वो पंपिंग हाउस के यूनिट में रहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पाइप जो रहता है हमारा पंप से निकलने वाला, उसको हम बोलते हैं राइजिंग मेन और मेन पाइप वी कैन से। सो राइजिंग मेन का पर्पस क्या रहता है, जो भी पानी हमने अभी पंप किया है रिवर से, वो पानी हम अभी कैसे पंप कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। ओके। हमने पानी कहाँ से लेना शुरू किया है, रिवर से लेना शुरू किया है, रिवर से हमने कुएं में ले लिया है, अब कुएं से हम क्या कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, वो पानी को हम लिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ तक, हमारे फील्ड तक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको हम लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। सो बाद में राइजिंग मैन रहता है। राइजिंग मैन के लिए यदि हमारा डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या करते हैं फार्मर, जो पाइपलाइन जो रहता है राइजिंग मैन का, वो हमेशा मिनिमम 6 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर रेटिंग का रखता है। मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज अ 60 मीटर हेड वी कैन से, इजंट इट। यानी कि जो प्रेशर रेटिंग जो रहता है उसका, वो प्रेशर रेटिंग ज्यादा का रखता है। क्यों ऐसा रखने का, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार यानी कि आपने एक बार यहाँ से मेन लाइन डाल दी, यानी कि ये क्या करते हैं, बाद में डिगिंग करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ से क्या है, यहाँ पे आपको फिलिंग करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल जो है वो ग्राउंड लेवल यहाँ पे नीचे है हमारे पाइपलाइन के। तो यहाँ पे यदि आप, एक तो आपको एंकर ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको ये पोर्शन जो है वो यहाँ से आपको फिलिंग करना पड़ेगा, सॉइल बाहर से निकल के लाके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि ये जो पाइप रहता है वो कंपल्सरीली अंडरग्राउंड रहता है, हम जमीन के नीचे उसको गाड़ देते हैं। मिनिमम अप टू 3 feet we used to go for, minimum I'm talking about, why is to go for 1 to 3 feet, because it should not to disturb the general प्लॉइंग ऑपरेशन और जनरल टिलेज ऑपरेशन। यानी कि जब हम खेती का खेत बनाते हैं पौधे लगाने के लिए, सोईंग करने के लिए, पेरणी करण्या अगोदर जे आपण रानाची मशागत करतो, ती मशागत करताना, नांगरणी वगैरे करताना, ते त्या इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशनला कुठेही त्याच्यामुळे पाईपलाईनचा अडथळा नाही आला पाहिजे। कारण बऱ्याच वेळा काय होतं की पाईपलाईन बस्ट होते, पाईपलाईन बस्ट होते किंवा पाईपलाईन तुटते, ब्रेक होते। सो टू अवॉइड दैट वी यूज्ड टू मेंटेन दैट पाइपलाइन अंडर द ग्राउंड। और एक बार आपने ग्राउंड के अंडर उसको जमीन में डाल दिया, और आपका क्या होगा कि आगे जाके आपका जो ग्राउंड आप कमांड एरिया जो था जिसको आप इरिगेट करना चाहते थे वो अभी बढ़ गया है, तो हम बाद में इसको, ये पाइपलाइन का कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। आप पंप का कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन पाइप का
कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पंप का कैसे बढ़ा सकते हैं, पंप को आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन पाइपलाइन को यदि आपको रिप्लेस करना है तो बाद में और एक बार आपको वो डिगिंग करना पड़ेगा, वो ट्रेंच निकालना पड़ेगा और वो पाइप आपको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा डालना पड़ेगा। तो इसलिए फार्मर क्या करता है, बाय कंसिडरिंग हिज और हर future plans and future needs, they is to go for a selection of the pipes those will fit the or those will have an for disturbance. There was a network problem, that's why it was happened. So right now I have connected my own net. Okay, college internet चा काहीतरी problem झालेला आहे. Here we were discussing about an lift irrigation scheme. Yes, हाँ, this part we were discussing about. So here जो मेन लाइन जो रहेगा हमारा, वो मेन लाइन अभी कैसा रहेगा, वो जमीन के नीचे रहेगा. Here is it visible? Is it visible now? Okay, चलो हाँ. So this main line will be buried under the soil, and after this a rising main or a delivery pipeline, we can say, we used to number of the times farmer used to either store that water in the dugout well or open well which he or she used to have in his or her farm, or they used to go for directly a irrigation. और बहुत बार क्या क्या करते हैं, डायरेक्टली जो पानी हमने यहाँ से लिफ्ट किया है वो पानी डायरेक्टली यहाँ पे आपके इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है. नहीं तो क्या करते हैं, खेत में वो पानी पूरा की पूरा जो लिफ्ट किया है वो स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद जैसा रिक्वायरमेंट है वहां से वैसे हम उसको यूज करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द स्टोरेज यूनिट, वी कैन से. This is a storage unit, that may be the farm pond, शेततळ असू शकतं ते. And in that farm pond here, from the river which the water which has been got lifted is stored, or it may be the well, open well we can say, and from there now by using another pumping unit the water will be delivered to the crops. Okay, so those are nothing but the connecting pipes, and this is the command area. So those are the connecting pipes. It maybe happens that we have an drip irrigation, sprinkler irrigation, or you are using an regular irrigation practices, that is a furrow irrigation, border strip, etc., etc. This is as per the requirement. So this is all about a lift irrigation scheme with a river as a source of water. It may happen that the source of water is other than the river. It may be the borewell or it may be the open well. जो कुछ भी हो सकता है. नदी आपका यहाँ पे स्ट्रीम में हो सकती है, ओढ़ा भी असू शकतो. So wherever the scheme is asked to have a particular source, then in that case you have to consider that source only. But this is a general overview of a lift irrigation scheme, we can say. And then that outlet we used to have the chambers. Here will be the chamber, outlet chamber, we can say, flange and all those things used to exist for that, so that wherever you are, whatever the area which you want to irrigate, that chamber will be opened, that flange will be opened, and that area will be get irrigated. And after irrigation of this area, the next area will be get irrigated. Likewise, the whole area or whole land will be irrigated in the either in the series we can say, or one by one we can say. So likewise, we used to come across the lift irrigation scheme. Okay, now we are going to discuss about the next part from the after the lift irrigation scheme, that is about the subsurface irrigation, which was remained to be explained in the previous class. So subsurface irrigation means what? Really that method is so rarely used, subsurface irrigation, though it's a we used to have a less application of this subsurface irrigation method. We'll see that what does it mean about the subsurface. Subsurface यानी कि क्या, जो भी हम पानी अभी soil को दे रहे हैं, whatever the area which we want to irrigate, for irrigation of that area the water will be applied from below the soil. यानी कि जो हमारा टॉप लेयर जो रहेगा सॉइल का, उसके नीचे से पानी अभी क्रॉप को दिया जाएगा. सरफेस में हम क्या कर रहे थे, सरफेस में हम जो पानी दे रहे थे क्रॉप के लिए, रूट को, वो सॉइल के ऊपर से दे रहे थे, सॉइल के ऊपर डाल रहे थे, और वो क्या हो रहा था, इनफिल्ट्रेट हो रहा था, पर्कुलेट हो रहा था, सीपेज हो रहा था, और वो रूट जोन्स को मिल रहा था. लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो पानी हम उसको दे रहे हैं वो पानी हम कहाँ से दे रहे हैं, बिलो द सॉइल, यानी कि जो हमारा टॉप सरफेस रहेगा सॉइल का उसके नीचे से दे रहे हैं. So यानी कि when we are talking about the subsurface, technically
So technically is nothing but the application of the water below the soil to the crops. It is nothing but the subsurface irrigation. Now the subsurface irrigation method is also having two types. That is a natural and a artificial. First we will discuss about the natural. अभी naturally कैसे subsurface irrigation करेंगे? Irrigation करना है यानी कि क्या करना है, जो भी हमारे plants है, जो भी crops है, जो भी trees है, उनका टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए हमें उनको पानी देना है. उनका जो ग्रोथ है वो एज इट इज रखने के लिए, एनहांस करने के लिए हमें उसको पानी देना है. अभी सब सरफेस यानी कि जमीन के नीचे से हम पानी कैसे दे देंगे उसको? अभी मैंने तो क्या बोला कि उसके दो मेथड से दो तरीके हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल. तो नैसर्गिक यानी कि नेचुरल हम उसको पानी कैसे दे देंगे, कैसे वो बिलो द सॉइल दे देंगे? तो नेचुरली क्या रहता है, जब हमारा यदि हमारा जो फील्ड है, जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, जहाँ पे हम खेती ओके. सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि नेचुरली अभी सब सरफेस इरिगेशन कैसे करेंगे. सो नेचुरली सब सरफेस इरिगेशन कैसे करेंगे, जब भी हमारा जो एरिया रहता है, जो भी फील्ड रहता है, वो हमारा फील्ड यदि पर्कुलेशन टँक यानी कि उसको हम पाझर तलाव बोलते हैं, मराठीमध्ये आपण त्याला पाझर तलाव म्हणतो, वैसा पर्कुलेशन टैंक है, नहीं तो अर्दन डैम है, स्मॉल चेक डैम्स है, उसके साइड में यदि हमारा फील्ड है, तो वो क्या होता है, जो भी पानी वहां पे स्टोर होता है, किसमें, वो टैंक में, पर्कुलेशन टैंक में या अर्दन डैम के बॉडी में, सॉरी अर्दन डैम के अपस्ट्रीम साइड में, ड्यू टू द बैरियर वट एवर द अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी देयर इन stored water, that stored water enhances the groundwater table, बिकॉज वो क्या होता है, डीप पर्कुलेट होता है, और जो भी वाटर टेबल होता है, वो वाटर टेबल क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर ऊपर आता है. और जब भी वैसे पानी जमीन के नीचे जो था, अभी क्या हो गया, वो ऊपर आ गया, तो वो क्या होता है, अल्टीमेटली वो ऊपर आ जाता है. आई विल शो यू विद द स्केच. आई विल गो फॉर, suppose that यहाँ पे I will go for the sketch. Suppose that this is a barrier which we have constructed over here. Okay, we'll consider that this is a barrier. I will go for 3D sketch so that we will get the idea what I want to say. Okay, we will consider that such type of the barrier we have constructed, and this is a, we'll consider that this is a river path. This is our river we will consider. ओके, और हमने क्या किया है, उस रिवर के फ्लो में क्या किया, हमने ये बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दिया है. ओके, यदि अब हमने ये जो बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो क्या होगा, जो भी यहाँ से जो पानी आ रहा था, ये रिवर के बैंक थे, वो क्या होगा, अभी वाटर का लेवल बढ़ेगा इस साइड में, ये पूरा के पूरा क्या हो गया, ये पानी ऐसा इस साइड में यानी कि अपस्ट्रीम साइड में क्या हो जाएगा, वो पानी ऐसा वहां पे स्टोर हो जाएगा. तो स्टोर होने के बाद क्या होगा, इट विल ट्राई टू मूव इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये क्या हो जाएगा, सॉइल में नीचे जाएगा. It will infiltrate and deep percolate, and if our field is in this underlying area, यहाँ पे इस साइड में हमारा यदि ये फील्ड है, यहाँ पे हम हमारे एक क्रॉप्स है, suppose that those are our crops, and this will be the crop zone root zone depth we can say. तो क्या होगा, नेचुरली जो ये पानी नीचे जो गया है, यदि मान लो कि हमारा ओरिजिनली वाटर टेबल यहाँ पे कहीं पे तो था, initially water table was somewhere else here, now that water table will slightly increase up to the root zone depth,
एंड अल्टीमेटली द क्रॉप्स विल गेट द वाटर। सो कैसे मिल गया पानी यहाँ पे क्रॉप को हमारे, जो भी हमने बैरियर कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे, वो बैरियर की वजह से क्या हो गया, जो पानी उसमें स्टोर हो गया था, वो जो स्टोर हुआ जो पानी था, वो स्टोर होने के बाद क्या हो गया, वो डीप पर्कुलेट होगा। ये हमारा बैरियर है, ऐसा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, दिस इज अवर बैरियर, डैम की बॉडी है, ऐसा ऐसा हम अज्यूम करेंगे उसको। ये उसका डाउनस्ट्रीम साइड है, डाउनस्ट्रीम साइड है, ये हमारा अपस्ट्रीम साइड है। ओके, वर्टिकल साइड इज अपस्ट्रीम साइड आई हैव कंसीडर्ड एंड दिस इज स्लांटिंग इज डाउनस्ट्रीम साइड। सो अपस्ट्रीम साइड में क्या होगा, ये पूरा के पूरा पानी स्टोर होगा, और पूरा पानी स्टोर होने के बाद वो क्या होगा, जमीन में नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद जो ग्राउंड वाटर टेबल हमारा यहाँ पे था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद हमारा जो क्रॉप्स है यहाँ पे, जो हमने क्रॉप लगाया है, वो क्रॉप को यहाँ पे पानी मिलेगा, जिसके रूट जोन को मिलेगा। तो दिस इज अबाउट है ना नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन वी कैन से। नाउ so the areas nearby a percolation tank, earthen dam, they gets water from the below the soil by a seepage and a percolation. Or it may happen that, or we will be able to increase that water table by digging the parallel channels or trenches at an interval of 15 meters to 100 meter as per the porosity of soil. यानी कि दूसरा एक तरीका है, वो क्या करते हैं उसमें, जो हमारा प्लॉट जो रहता है, वो प्लॉट के चारों साइड से और इंटरमीडिएट भी हम क्या करते हैं, चैनल्स चैनल्स और ट्रेंचेस डग आउट करते हैं। और वो चैनल्स और ट्रेंचेस जो रहते हैं वो पैरेलल रन होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं, और उनका जो लेंथ वगैरह जो रहता है, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल। उसका जो साइज, सॉइल का जो पोरोसिटी जो है, वो पोरोसिटी के हिसाब से रहता है। यदि ज्यादा पोरस है तो दो चैनल में का डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, यदि पोरोसिटी कम है तो दो चैनल में का डिस्टेंस कम रहेगा। और बाद में क्या करते हैं, वो जो चैनल्स हम डग आउट करते हैं, डिगिंग करते हैं, उसमें पानी पूरा के पूरा भर देते हैं। कहाँ तक, जहां तक रूट जोन डेप्थ रहता है वहां तक उसमें पानी भरने का। तो क्या होगा, अल्टीमेटली द वाटर विल स्प्रेड फ्रॉम दोस चैनल्स एंड इट विल बी taken by the root zones. So this is an natural subsurface irrigation method we can say. Artificially, how to achieve it? So artificially, that is one and the same which I have discussed in a previous slide. And another way is there, that is achieving the artificial subsurface irrigation method, is that is by burying the perforated pipes or drip lines. बहुत बार फार्मर क्या करता है, यदि आपने बहुत बार देखा भी होगा, गन्ने का यदि खेत होगा, तो गन्ने के खेत में क्या किया जाता है, जो ड्रिप लाइन जो रहती है, वो ड्रिप लाइन बरीड की जाती है सॉइल के नीचे से, नीचे से सॉइल में उसको क्या कहता है, ऐसा बरीड किया जाता है। तर जमिनीमधून ती पाईपलाईन का टाकायची, किंवा ड्रिप लाईन्स किंवा पोरस पाईप जे असतात आपल्या, तर जमिनीमध्ये का पुरल्या जातात, तर त्याच्या पाठीमागे दोन कारण असतात. The first reason is that to have a direct application of water to the root zone. पहिलं application main झालं. Second purpose behind that is the whenever we used to talk about an closely spaced or closely growing crops such as an शुगर केन, जर का आपण ऊसाचं उदाहरण घेतलं, तर ऊसाचं जे पीक असतं ते ती अतिशय क्लोजली ग्रोईंग आहे, म्हणजे एकमेकांच्या जवळ जवळ त्याचे झाड असतं, म्हणजे ऊस असतो. पण त्या केसमध्ये काय होतं, तो पालापाचोळा पडून वगैरे खूप दाटी होते, आणि त्याच्यामध्ये रोडंटची संख्या वाढते. रोडंट म्हणजे काय, उंदीर आणि घुशी. मग जर का अशा क्रॉपला, अशा ऊसामध्ये जर का आपण ड्रिप लाईन टाकलेली असेल, तर ती रोडंट्स काय करतात, पूर्णपणे ब्रेक करतात. म्हणजे तिथं मग खारुताई असेल, उंदीर असेल किंवा घुशी असतील, हे सर्वच्या सर्व काय करतात, दे यूज टू कट दॅट, ब्रेक दोज ड्रिप लाईन्स. सो टू अवॉइड दॅट, फार्मर यूज टू have an advanced technique. The farmer used to bury that drip lines in the ground. तो वहां पे फार्मर क्या करता है, जो भी रहता है जो भी हमारे ड्रिप लाइन्स रहते हैं, वो जमीन के नीचे से डाले जाते हैं, ताकि क्या होगा, जब भी वो परफोरेटेड पाइप से और ड्रिप लाइन से अंडर प्रेशर पानी अभी पास करेंगे, तो क्या होगा, पानी उसमें से बाहर आएगा और डायरेक्टली हमारे रूट जोन को मिलेगा. ओके, और डायरेक्टली उसमें हमें फर्टिगेशन भी किया, यानी कि क्या क्या हमने उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड किए, लिक्विड फर्टिलाइजर्स, तो क्या होंगे, वो डायरेक्टली उसको क्रॉप के रूट्स को मिलेंगे, क्रॉप को मिलेंगे. तो लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या रहता है, the main drawback is that whenever we are burying those perforated pipes, we will talk about the perforated pipes firstly, then care should be taken that those perforated pipes should not to have any sort of a disturbance to the cultivation operations. यानी कि क्या, जो भी हम इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि हैरोइंग होगा, आपण त्याला हे म्हणतो
कुळवणे आणि वखरणे म्हणतो. त्यानंतर आपण नांगरणी करतो. त्याचबरोबर आपण पिकामधून कोळपणी करतो. म्हणजे आपण वी यूज्ड टू ट्राय टू रिमूव्ह द ग्रासेस. तर आपण खुरपणी असं म्हणतो. मग अशा केसमध्ये जर कशी इंटरकल्टिव्हेशन ऑपरेशन करत असेल, then those intercultivation operations should not be get obstructed by those perforated pipes. Then regarding the drip lines, if you are going to bury the drip line, then it becomes so much difficult to take them out for the next crop. यानी कि आपने क्या किया, गन्ने का क्रॉप मैक्सिमम 3 साल तक हम ले सकते हैं, 3 बार उसको ले सकते हैं. देन उसके यानी कि पहली बार हम नया लगाएंगे, बाद में उसको काटने के बाद और एक बार आता है, काटने के उसकी बार और एक बार हमने उसको काटा तो और एक बार आता है. ऐसा हम क्या करते हैं, 3 बार तक, मैक्सिमम 3 बार तक ले सकते हैं. लेकिन उसके बाद में क्या करना पड़ता है हमें, वी हैव टू गो फॉर कल्टीवेशन ऑफ द सॉरी वी हैव टू गो फॉर ऑल द फील्ड ऑपरेशंस. यानी कि हमें बाद में वो जो खेती रहते हैं जहाँ पे हमने गन्ना लगाया है, वहां का पूरा के पूरा खेत हमें और एक बार प्रिपेयर करना पड़ता है, उसका नांगरनी प्लॉइंग वगैरह करना पड़ता है. सो उस वक्त वो जो ड्रिप लाइन्स हमने जो जमीन में डाले हैं, गाड़े हैं, वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. तो क्या होते हैं, वो ब्रेक होते हैं. सो दोस आर द ड्रॉबैक्स वी कैन से. और दूसरा ड्रॉबैक क्या रहता है, यदि आपने ड्रिप लाइन जमीन में डाल दिए, सॉइल में डाल दिए, तो क्या होगा, जब आपका पंप स्टार्ट होगा तब वो क्या होगा, वो रहते क्या रहते हैं, वो इलास्टिक रहते हैं. दे आर इलास्टिक एंड प्लास्टिक इन नेचर. यानी कि क्या होता है, जब पानी उसमें आएगा तो वो क्या होंगे, ऐसे स्वेल होंगे, बढ़ेंगे डायमेंशन से. लेकिन उसके ऊपर सॉइल है तो क्या होगा, सॉइल स्वेल होने के बाद, यानी कि पानी मिलने के बाद क्या होगा, स्वेल होगा, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा और उसका वेट बढ़ेगा. और जब पंप आप बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो क्या होगा, ड्रिप लाइन में से जो पूरा पानी बाहर निकलेगा और वो क्या होगा, ऐसा स्क्वीज हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा. तो स्क्वीज होने के बाद क्या होगा, एक बार स्क्वीज हो गया वो, उसके ऊपर मिट्टी आ गई है, मिट्टी का लोड आ गया है, तो बाद में जब आप उसको ऑपरेट करेंगे, पंप को स्टार्ट करेंगे, तो इजीली एक्सपांड नहीं होता है. सो दोज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द drip lines or the laterals which you are going to bury inside the soil to have an artificial सबसर्फेस इरिगेशन. और एक उसका मेन ड्रॉबैक क्या रहता है कि उसका जो कॉस्ट जो रहता है, वो कॉस्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि जनरली ड्रिप और स्प्रिंकलर के ड्रिप लाइन्स के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए कॉस्ट है ही ज्यादा. और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें उसको उसका डिगिंग भी करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और हमें एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे हमें पे करनी पड़ती है. Okay, so by considering that, owing to those conditions, those methods of artificial irrigation, sorry, subsurface irrigation methods are rarely used by the farmers. Okay, this is about an subsurface irrigation method. Now we'll go for the, I will show you the sketches here. The sketches are there. This is a lateral, we can say, drip line, and those are the emitters. This is a inline. Inline यानी कि what? Inline में क्या होता है, जो emitters जो रहते हैं, वो emitters वो drip line के अंदर ही रहते हैं. ये जो पाइप आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसके इनसाइड में ही वो इमिटर्स रहते हैं, उसको इनलाइन बोलते हैं. और ऑनलाइन यानी कि क्या, यदि हमारे इमिटर्स ऊपर है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, ऊपर से लगाए होंगे, तो उसको हम ऑनलाइन बोलते हैं. लेकिन जब भी आप सब सरफेस इरिगेशन करना चाहते हैं और करना सोचते हैं, तब कंपल्सरीली हमें वो इनलाइन ही लेना पड़ता है, इनलाइन ही लगाना पड़ता है. क्योंकि ड्रिपर्स लगाए आपने, वो बाद में वो निकालते वक्त, वो जो बरीड पाइप किया था वो निकालते वक्त वो टूट सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है. So under such conditions, or you may prefer this is a porous pipe. So porous pipe कहाँ पे डाला है, ये हमारा टॉप सरफेस है ग्राउंड का, ये हमारी टॉप की मिट्टी है और ये हमारे पौधे हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, ये थोड़ा सा डेप्थ नीचे लिया है और यहाँ पे डायरेक्टली वो सॉइल में ब्रीड किया गया है, ताकि क्या होगा, जब भी ये ऑपरेट होगा तो पानी इसमें से बाहर आएगा और ये जो भी साइड के जो रूट्स है, तो डायरेक्टली पानी वो रूट्स को मिलेगा और वहां से अपटेक हो जाएगा. यानी कि क्या होगा, जो क्रॉप है वो क्रॉप पानी उसके ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेगा. Another one sketch I will go for. This is a preparatory phase. This is a preparatory phase and this is a final phase. Preparatory phase में आपको दिखता है ये ऐसे ट्रेंचेस निकाले हैं और ये ट्रेंचेस में ये ड्रिप लाइन डाल दी है, अभी परफोरेटेड पाइप डाल दिए हैं. अब ये क्या करेंगे, ये उसको उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, इस साइड से और दोनों साइड से मिट्टी डालेंगे और ये क्या होगा, नीचे जाएगा जमीन में, सॉइल के नीचे जाएगा और उसके ऊपर एक बाद में क्रॉप लगाएंगे यहाँ पे.
ये जो यहाँ पे लगाए हैं क्रॉप्स, ये पौधे जो लगाए हैं, ये पौधे इस साइड में लगाए हैं और उसके नीचे ये पाइपलाइन दिख रहा है हमें। तो जब भी हम उसको ऑपरेट करेंगे तब ये इसमें से पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन ड्रॉबैक क्या रहता है उसका, उसके लिए हमें एडिशनल ट्रेंचिंग करना पड़ता है। बाद में ट्रेंचिंग करने के बाद उसको वो जो ट्रेंच हमने यहाँ पे किए हैं, बनाए हैं, वो ट्रेंचेस को हमें क्या करना पड़ता है, बाद में उनको सॉइल, उसमें मिट्टी उसमें डालनी पड़ती है, ताकि वो जो हमारा परफोरेटेड पाइप है, वो परफोरेटेड पाइप जो रहेगा वो मिट्टी के नीचे रहेगा। और बाद में यानी कि यदि हमने मिट्टी ज्यादा भी डाल दी उसके ऊपर, और यदि आपने ड्रिप लाइन डाला है उसके नीचे, जमीन में के नीचे ड्रिप लाइन डाला है उस ट्रेंच में, और मिट्टी डाल दी, तो वो क्या होगा, स्क्वीज हो जाएगा। ते काय म्हणतात आपल्या भाषेमध्ये, ते चेपटलं जाणार आणि त्याच्यामुळे काय त्याचं एक्सपान्शन होणार नाहीये. इट विल नॉट एक्सपांड देन, एंड इफ इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपांड देन इन दैट केस फ्रॉम दैट एंड, सपोज दैट आपने यहाँ पे मिट्टी डाल दी और यहाँ पे आपका जो पाइप है वो स्क्वीज हो गया, तो स्क्वीज होने के बाद क्या होगा, ये इसका जो, मान लो कि यहाँ से आपका सप्लाई है, तो इस साइड में पानी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वीज होगा तो पानी आगे आएगा नहीं। उसका जो ओपनिंग था, वो ओपनिंग डायमीटर क्या होगा, कम हो गया, और यहाँ से आगे का जो पोर्शन रहेगा वो आपका ड्राई रहेगा। और उसको रिपेयर करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, बाद में यहाँ पे ट्रेंच खोदना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, वहां पे कट करके बाद में जॉइनर लगाना पड़ेगा। सो इट रिजल्ट्स इन अ एडिशनल कॉस्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट एन our subsurface irrigation method. I think so, I hope so all of you understood what is the meaning and how it is to be there. Then the next part which you have to go for, that is a minor irrigation schemes. अब माइनर इरिगेशन स्कीम यानी कि क्या, जो भी हमारा स्कीम है जहां से हम इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन करना चाहते हैं, वो जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो उसका जो कैपेसिटी है, उसका कैपेसिटी कम है, बहुत कम है, 1 TMC से भी कम है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर इरिगेशन स्कीम। यानी कि उसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि जो भी हमारे स्ट्रीम्स रहते हैं, अगर अपन ओढ़ा समझ दो, स्ट्रीम्स के ऊपर फार्मर क्या करता है, उसके खेत के साइड में स्ट्रीम होता है, तब वो छोटा सा वहां पे बांध डालता है। वो बांध डालने के लिए वो बहुत बार क्या करता है, जो सीमेंट बैग्स रहते हैं, वो सीमेंट बैग्स लेता है और उसमें मिट्टी डालता है, नहीं तो उसमें सैंड डालता है, और उस सैंड उसके भरने के बाद वो उसको अलाइन करके छोटा सा बैरियर कंस्ट्रक्ट करता है। सो वो छोटा सा बैरियर है, तो वहां पे जो पानी स्टोर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो उसको हम उस लाइकवाइज जो ऐसे स्कीम जो रहते हैं, उसको हम माइनर इरिगेशन स्कीम बोलते हैं। यानी कि वो पानी क्या होगा, लोकलाइज्ड रहेगा, वो फार्मर खुद ही यूज करेगा। यदि बहुत बड़ा स्ट्रीम है तो उसमें क्या किया जाता है, collaboratively the farmers comes together and they used to go for at their own, or they may propose to the gram panchayat or the government authority, we can say, and government authority used to go for a small cement bund or a small barrier, small weir we can say, जर आपण बंधारा म्हणतो, मग तो आपला पर्क्युलेशन टँक असेल तर छोट्याशा ओढ्यावरती आपण पर्क्युलेशन टँक घेतो, पण तो जर का मोठा ओढा असेल तर तिथे आपण बंधारा घेतो. So such type of the construction, such type of the irrigation schemes, after construction of the such type of the small barriers, whatever the water will be get stored, that water will be get used for the irrigation, and as their capacity of the storage is less, so that's they are considered as a minor irrigation scheme. Now we'll see one by one what are they, necessity and general layout we are going to discuss. So what is the necessity? If our farmer used to have a small areas, in that case digging cost of the well is becomes a larger, instead of constructing a small barrier over that a small stream, then in that case he or she is to go for a system of the minor or a small barrier from which she is to go for a irrigation. The layout and all those things we are going to discuss with the help of the sketch. It's first example is a percolation tank, that is a nala bunding. आपण त्याला बऱ्याच वेळा पाझर तलाव असं म्हणतो. In ancient days, before 10 to 20 years back, those percolation tanks were constructed in a huge amount, not only in the forests but also in the barren lands where no agriculture was carried out, and there used to have some undulating surfaces and huge slopes. जिथं जिथं शेती केली जात नव्हती, म्हणजे असं जे पडीक जमीन जी होती, गायरान जमीन जी होती तिथं, आणि त्याचबरोबर जे आपलं फॉरेस्ट वगैरे जे होते, त्या ठिकाणी काय केलं होतं गव्हर्नमेंटने,
भरपूर ठिकाणी असे पर्क्युलेशन टँक आणि नाला बंडिंग केले होते. आणि ते त्यावेळेचं दुसऱ्या पाठीमाग ती जी स्कीम असायची ती रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत असायची. रुहोज हे एक डिपार्टमेंट आहे आपलं गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वी कॅन से राईट नाउ इन महाराष्ट्र वी कॅन से द गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. तर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अशा पद्धतीचे छोटे छोटे बांध घातले जायचे, मातीचे बांध घातले जायचे आणि त्याच्या अपस्ट्रीम साईडला दगडाचं स्टोन पिचिंग केलं जायचं. सो तो स्मॉल बॅरियर्स ऑफ अर्धन मटेरियल आर कॉल्ड एज अ पर्क्युलेशन टँक. म्हणजेच काय, पाझर तलाव. पर्क्युलेशन म्हणजे काय, पाझरणे. पर्क्युलेशन टँक म्हणजे पाझर तलाव झाला. त्याचं एक्झाम्पल म्हणजे नाला बंडी, म्हणजे छोटे छोटे जे बांध घातले जायचे, दोज आर नथिंग बट नाला बंडिंग्स. The component parts we are going to discuss about. Then earthen bund to form a tank. Those are the types of the minor irrigation scheme. That is a percolation tank. Then earthen bund to form a tank. Then cut-off trench to control the seepage through the foundation. This is a component part of the nala bunding, we can say. I will show you the sketch so that you will get the idea. Then broad-crested weir for removal of the surplus water. And stone pitching, riprap to protect the upstream soil. I will show you here in. So this is an layout of a percolation tank. एक नाला बंडिंग आहे, छोट्या डायमेन्शनचा असतो. सो इथं जर का आपण बघितलं, here we are finding the various component parts. So this is our ground level. This is a ground level here we can say, and this is the upstream side from where the water is stored. This is a water level. This is the water level indicator. First, that is the highest water level, and this is the regular water level, safe water level we can say. The general slope is a 5 vertical as to 2 horizontals. Means a minor scale means for a 5-meter vertical, the 2-meter horizontal slope they have provided for upstream side, and for downstream side 1:2 slope is provided. So here for construction of such type of the percolation tank, we used to have a different materials. Is same as like an earthen dam also we can say. हे जे स्ट्रक्चर राहतं आपलं, ते आपला जो मातीचं धरण जे राहतो त्या पद्धतीने राहतो. फॉर एक्झाम्पल जायकवाडी is an half portion it is having upon soil, and half portion that is in the reverse stretch, its portion is of concrete, isn't it? So if you consider such type of the tanks, then we used to go for the construction of the percolation tank as like an earthen dam. So how to go for? Firstly, we have to go for a digging of some trench here over here in, so that there is a proper bounding or proper foundation we can say. After that, we used to start the construction by addition of the soil layers. Firstly, we used to go for spreading of the soil. पहिल्यांदा काय केलं त्याच्यावरती, जी सॉइल अंथरली जाते, टाकली जाते सॉइल याच्यावरती, and then by watering we used to go for a compaction. म्हणजे सुरुवातीला काय करायचं, फर्स्टली वी हॅव टू गो फॉर अ लेअर ऑफ अ सॉइल, म्हणजे मातीचा थर टाकायचा, त्यानंतर पाणी मारून घ्यायचं, त्याच्यावरती स्प्रेइंग करायचं, अँड वी हॅव टू गो फॉर रोलिंग, म्हणजे कॉम्पॅक्शन करायचं त्याचं पूर्णपणे. आफ्टर दॅट अ सेकंड लेअर लाईकवाइज. अँड जनरली फॉर द पर्क्युलेशन टँक वी यूज टू हॅव अन सेम सॉइल. एकच सॉइल आपली बॉटम ते टॉप पर्यंत असते, त्याच्यामुळे त्याला आपण सिंगल लेअर पर्क्युलेशन टँक असं सुद्धा म्हणतो. Okay, किंवा homogeneous percolation tank. Homogeneous means what? The homogeneous word is here for a type of a soil. If the soil is of the same type, it is a homogeneous. If they put different types, it is a non-homogeneous. Then regarding this central portion, which is here it has been shown as a clay, but the clay and sand is mixed, which is considered as a central core. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यदि आपने जो अवेलेबल जो मिट्टी है वहां पे, वो सब मिट्टी यहाँ पे यूज की किसके लिए, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या होगा, उसमें जो पर्कुलेशन जो रहेगा वो पर्कुलेशन का रेट ज्यादा रहेगा, पानी ज्यादा पर्कुलेट होगा उसकी बॉडी में. यदि अर्दन बॉडी में, डैम के बॉडी में पानी पर्कुलेट होगा तो क्या होगा, ये सॉइल पूरा के पूरा स्वेल होगा, और जो पानी यहाँ पे अपस्ट्रीम साइड पे स्टोर हो रहा है उसका जो फोर्स लगेगा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक, उसकी वजह से क्या होगा, ये सैंड का जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी आ गया अंदर में. तो सॉइल क्या हो जाएगी, वो यहाँ से पूरी की पूरी सॉइल लूज हो जाएगी और सॉइल उस पानी के साथ बह जाएगी और स्ट्रक्चर हमारा पूरा के पूरा कोलैप्स हो जाएगा. So to protect the structure, what we used to do generally, we used to construct the central core of a impervious material or so less permeable material. यानी कि जो हमारा सेंटर का जो पोर्शन जो रहता है उसका, वो सेंट्रल का पोर्शन जो रहता है उसका जो, उसकी जो मिट्टी रहती है, वो मिट्टी जो है वो मिट्टी
वो उसका जो परमेबिलिटी जो रहता है वो सो लेस रहता है, उसमें पानी इजीली पर्कुलेट नहीं होता, इजीली पानी उसमें से पास नहीं हो सकता है. ओके. तो वैसा जो सॉइल होता है वो क्ले, यानी की चिकन माती जी म्हणतो आपण, ज्याच्यामधनं होल्ड करू शकते पण ट्रान्सफर करू शकत नाही, ती माती जास्त पाणी ट्रान्सफर करत नाहीये. त्याच्यामध्ये काय केलं असते, फाईन सँड किंवा ग्रॅव्हल मिक्स केलेले असते, जेणेकरून ती सेंट्रल पोर आपली प्रॉपर इम्परमेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करते. अँड ऑन अपस्ट्रीम साइड अँड डाउनस्ट्रीम साइड वी टू गो फॉर अ रेग्युलर साइड, बट टू प्रोटेक्ट दॅट अगेन हिअर वी टू हॅव अ फिल्टर. इथं काय केलेलं असतं, याच्यावरती फिल्टर म्हणजे पुन्हा करता इथं वाळू टाकलेली असते आणि वाळूच्या नंतर वरती आपली जी काय असेल ती सॉइल. परंतु हे कन्स्ट्रक्ट करताना ऍट अ टाइम केलं जातं, नॉट विज टू गो फॉर ओनली कोर अँड अदर थिंग्स. If we have decided to go for a half feet of layer, then half feet of layer up to this will be of a regular soil, sandy soil. Half feet of layer will be of a clay mixed with sand, and then half feet will be for this stretch as a sandy soil. Then spraying of the water, compaction, the next layer likewise is to go for. Then फॉर द कंट्रोल ऑफ द सीपेज, यानी कि क्या होगा, अभी उसके नीचे से भी पानी जाएगा, और यदि पानी ये ऐसा ही और बॉडी के नीचे से ऐसा डाउनस्ट्रीम तक जाएगा, ये अपस्ट्रीम रहेगी हमारी और ये डाउनस्ट्रीम रहेगी. यदि पानी ऐसा ही फाउंडेशन में निकलता जाता रहेगा तो क्या होगा, पूरा के पूरा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से कोलैप्स हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैविटी फॉर्म होगा, यहाँ पे पाइपिंग फेनोमेनन फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले क्रैक में से पानी निकलते जाते वक्त क्या होगा, साइड के जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल इरोड होंगे और पार्टिकल भी उस पानी के साथ नीचे से निकल जाएंगे. तो क्या होगा, वहां का जो छोटा पार्ट जो था, जो क्रैक था, वो क्रैक बढ़ेगा, और क्रैक बढ़ने से क्या होगा, वो पाइपिंग है कि पहले क्रैक था ऐसा लाइन जैसा, लेकिन वो बढ़ने के बाद मान लो कि आपका टॉप का पोर्शन है ये ऐसा पाइपिंग हो जाता है, एयर गैप वाला ऐसा पाइपिंग हो जाता है. और पाइपिंग होने से क्या होगा, यहाँ का लोड बीयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्राटा ही नहीं है नीचे, उसके नीचे कुछ नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, उसमें कोलैप्स हो जाता है, उसमें नीचे सिंक हो जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा के पूरा कोलैप्स होता है. तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसा ट्रेंच निकलते हैं, उसको फिल्टर बोलते हैं हम. और वो फिल्टर में क्या होगा, जो पानी ऐसे यहाँ से बॉडी के नीचे से आ रहा था, फिल्टर पर्कुलेट हो रहा था, वो डायरेक्टली पूरे बॉडी के नीचे से नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से इंटरप्ट किया जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, और ये बाद में उसको एक पाइप कनेक्ट करके उसको साइड में पानी निकाल दिया जाएगा. ओके. सो बाद में क्या होता है, लेकिन जो डीप जो वाटर पर्कुलेट हो, हमारा पर्पस क्या है, पर्कुलेशन बढ़ाना है, यानी कि क्या करना है, जो पानी जमीन में हमें कम था वो पानी हमें बढ़ाना है, तो ग्राउंड वाटर टेबल इंप्रूव करना है. सो हमने क्या किया, यहाँ पे कट ऑफ ट्रेंच पे डालते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, वो जो हमारी लेंथ जो रहती है अपस्ट्रीम साइड, तो यहाँ पे कट ऑफ ट्रेंच ऐसा वॉल रहता है, कट ऑफ ट्रेंच यानी की डिगिंग करते हैं, सारी असते ती, ज्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा वॉल कन्स्ट्रक्ट केली असते, जेणेकरून पाणी बरोबर आपलं डाउनस्ट्रीम साइडला ते पास होणार नाहीये. That top trench will act as a barrier, we can say, if the wall is provided. Then from the below surface, the water whatever stored on the upstream side, it moves, it infiltrates in the soil in a downward direction, moves in a downward direction, and then it passes towards the downstream side as a percolation. Percolation म्हणजे काय, पाझरून ते पाणी काय होणार, हळूहळू slowly that water starts moving towards the downstream side or downstream end, we can say. And to collect that water, the farmer used to go for digging the well. यानी कि यहाँ पे क्या करता है फार्मर, यहाँ पे वो वेल यानी कि कुआं खोदता है. तो क्या होगा, ये जो पानी हमारा डीप पर्कुलेट हो गया था, वो पानी वेस्ट नहीं जाएगा, वो कहाँ पे आएगा, हमारे कुएं में आएगा, और कुएं से वो क्या करेगा, अभी लिफ्ट इरिगेशन करेगा, और लिफ्ट को आगे जाके वो ड्रिप करेगा, नहीं तो फ्लड इरिगेशन करके वो पूरा के पूरा जो एरिया है वो एरिया इरिगेट करेगा. बहुत बार फार्मर क्या करता है, instead of going for digging a well and all those things, he or she is to go for lifting the water directly from this sump. यानी कि जो यहाँ पे जो सोर्स रहता है हमारा, यहाँ पे जो पानी स्टोर होता है, यहाँ पे इस साइड में वो क्या करता है, पंप डालता है और यहाँ से ही पानी लेता है और वो यूज करता है. लेकिन जब भी हम पर्कुलेशन बोलते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है, वाटर जमीनी में जो सॉइल में जो पानी अभी जा रहा है, नीचे पर्कुलेट हो रहा है, नीचे धीरे धीरे जा रहा है, उसको हम कलेक्ट करके उसको साइड में से निकाल के वो हम बाद में इरिगेशन के लिए यूज करते हैं. दिस इज एन लेआउट ऑफ पर्कुलेशन टैंक एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. अभी यहाँ पे क्या होता है, अपस्ट्रीम साइड में हमने क्या किया,
पानी स्टोर कर दिया। जो हमारा मटेरियल है वो हमारा क्या है, सॉइल है, दैट मे बी द सैंडी, दैट मे बी द क्लेई, दैट मे बी द मिक्स्ड और एनीथिंग एल्स, बट दैट वो क्या है, सब के सब मिट्टी है। यदि ये मिट्टी है और हमने यहाँ पे पानी स्टोर किया है, बहुत सारा पानी स्टोर किया है, स्टोर करने के बाद क्या होगा, यहाँ का जो सॉइल रहेगा वो क्या होगा, पूरा के पूरा सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट हो जाएगा यानी कि क्या होगा, उसके जो पोर स्पेसेस जो है वो पूरे के सब पोर स्पेसेस क्या हो जाएंगे, पानी से भर जाएंगे और वो पूरा क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स सब के सब स्वेल हो जाएंगे। यदि वो सॉइल मॉलिक्यूल्स जो है यदि वो स्वेल हो गए तो क्या होता है, तो उनका जो कोहेसिव फोर्स रहता है, बाइंडिंग फोर्स हम जिसको बोलते हैं, एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, वो कम हो जाता है और वो क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा नीचे वो सब के सब एज अ मड वो नीचे नीचे गिर जाता है, नीचे ऐसा आता है, और मड हम उसको बोलते हैं। तर मराठीमध्ये आपण चिखल म्हणतो. तो चिखल तयार का होतो, हा असा खाली घसरत येतो आणि पूर्णपणे स्ट्रक्चर काय होतं आपलं इथलं, इरोजन होतं आणि स्ट्रक्चर आपलं काय, स्ट्रक्चरची जी स्टॅबिलिटी राहते ती स्टॅबिलिटी कमी होते. So again, if the wind is therein, then wind generated tide is to exist. उसके ऊपर क्या होते हैं, पानी के ऊपर tides रहते हैं, अपन लाटा म्हणतो. If those tides are going to strike, they are going to strike over this surface only. When those tides used to strike here, due to that hydrodynamic force, the water molecules used to get eroded. यहाँ पे जो मिट्टी रहेगी वो मिट्टी के ऊपर क्या होगा, स्वेल हो गई है, उसका बाइंडिंग फोर्स कम हो गया है, जो होल्डिंग कैपेसिटी थी एक दूसरे के पार्टिकल्स को वो कम हो गई है, और उसके ऊपर क्या हो रहा है, जो विंड जनरेटेड टाइड्स थे वो टाइड्स आके अभी उसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं। तो जब वो उसके ऊपर स्ट्राइक होंगे तो क्या होगा, यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी सडनली वो स्ट्राइक होते वक्त यानी कि फोर्स के साथ निकल जाएगी और वो निकल कर नीचे आ जाएगी। ये रहा ये वाटर लेवल के लिए, वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो गया, मान लो कि वाटर लेवल हमारे यहाँ पे है। सो वाटर लेवल हमारा यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, बाद में यहाँ की तो मिट्टी गिर गई, नीचे आ गई, लेकिन बाद में क्या होगा, पानी कम हो गया, पानी कम होने के बाद फिर दूसरी एक बार क्या हो गया, वहां पे टाइड्स आ गए और वो टाइड्स यहाँ पे स्ट्राइक हो गए, यानी कि जो भी वॉटर जनरेट सॉरी विंड जनरेटेड टाइड्स थे, ज्या लाटा होत्या पाण्याच्या त्या लाटा पुन्हा एकदा कुठेपर्यंत आल्या, आपल्या डॅमच्या बॉडी पर्यंत आल्या, त्या बॅरियर पर्यंत आल्या, याच्यावरती स्ट्राइक झाल्या, म्हणजे पुन्हा काय होणार, whatever the swelled soil was there, saturated soil was there, it will be get removed and there will be the additional formation of the cavity. So likewise there will be the erosion of the upstream side. तो यदि ऐसा इरोजन हमारा कंटिन्यूसली रहेगा तो वो क्या होगा, 2-3 साल में हमारा पूरा के पूरा जो पर्कुलेशन टैंक का जो बांध है हमारा, वो बांध हमारा क्या हो जाएगा, वहां से वैनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो पानी आएगा तो पानी के बहाव से जो उसका फोर्स है पानी का वो अभी बैलेंस नहीं कर पाएगा और वहां से वो क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा पानी के साथ वो धो जाएगा, कि वॉश आउट हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट, अभी ये उसको हमें क्या करना है, उसका लाइफ हमें बढ़ाना है, यानी कि जो इरोजन हो रहा था वो इरोजन है वो हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है यानी कि क्या करना है, हमें पूरा के पूरा जो इरोजन है वो हमें बंद करना है, स्टॉप करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा अपस्ट्रीम साइड है उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी उसको प्रोटेक्ट करना है तो कैसा करेंगे प्रोटेक्ट हम, तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा अपस्ट्रीम साइड का जो सॉइल सरफेस है उसके ऊपर बहुत बार स्टोन का लेयर दिया जाता है, यानी कि उसको हम जो अपस्ट्रीम साइड रहेगी उसके ऊपर ये स्टोन रखते हैं ऐसे, ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन अलोंग द लेंथ जो भी उसका लेंथ रहता है, अलोंग द लेंथ up to the maximum water level and additional freeboard, we used to go for a layer of stones that to be well embedded with each other, यानी कि एक दूसरे के साथ ऐसे लॉक इंटरलॉक्ड करके, और थोड़ा सा उनका पोर्शन जो रहता है, हाइट जो रहता है वो सॉइल में एम्बेडेड करके, यानी कि वो जो मिट्टी रहेगी उसके मिट्टी के अंदर उसको घुसा के रखते हैं, ताकि बाद में वो नीचे तक, बाद में जब वाटर आएगा वहां पे सॉरी, जब नीचे इसमें आ जाएगा तब पानी जब स्ट्राइक होगा तब वो स्टोन जो रहेंगे वो स्टोन नीचे नहीं आएंगे। ओके, तो उसको केयर क्या लेना पड़ता है हमें,
तो जो केयर हमें लेना पड़ता है, तो वो जो स्टोन्स हम यहाँ पे रख रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होनी चाहिए और सॉइल के साथ भी वो एम्बेडेड होनी चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे सरफेस रहेगा, सरफेस पे जो मिट्टी रहेगी, जो सॉइल रहेगी हमारी, वो क्या होगी, डायरेक्टली वहां पे उसके साथ में रहेगी। यानी कि जो सॉइल है यहाँ पे हमारा, वो हमारा सॉइल प्रोटेक्ट रहेगा। यानी कि अपस्ट्रीम स्लोप जो है हमारा, वो अपस्ट्रीम स्लोप हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। दैट इज द थिंग दैट हाउ that is the thing that that we have to go for protection of a upstream slope। और बहुत बार क्या होता है, और स्टोन पिचिंग को हम रिप्रैप भी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार है कि जब खेती में भी हम क्या करते हैं, यदि थोड़ा छोटा सा बांध है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, और साइड से नहीं तो खेत में से ये स्टोन्स लाते हैं, पूरे कलेक्ट करते हैं और वो उस बांध के नजदीक वो पूरे के पूरे अलोंग द लेंथ हम लगाते हैं, ताकि वहां से सॉइल इरोड ना हो सके। ओके, ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम स्लोप प्रोटेक्शन। अभी हमें डाउनस्ट्रीम का प्रोटेक्ट करना है, तो डाउनस्ट्रीम का कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? Okay, means what, how we will be able to protect the downstream end? We have to make the surface as flat as, or if it's not possible, means suppose your height is so high, height is say about an 10 meters we will consider generally. If a 10-meter height is there, it means that for a so flat surface, so flat slope, we will require to have a so large length। हा जर का सरफेस आपण टॉपचा जर का जो स्लोप आहे तो जर का आपण फ्लॅट करायचं म्हटलं असा, तर आपल्याला खूप लांब पर्यंत सॉइल ते स्प्रेड करावं लागेल। मग त्या केसमध्ये काय केलं जातं, देस टू गो फॉर अ ट्रेंचिंग, टेरेसिंग आपण म्हणतो। म्हणजे काय, सपोज दॅट दिस इज अ टॉप सरफेस हियर वी आर फाइंडिंग दॅट, देन दिस इज अ स्लोपिंग साइड, डाउनस्ट्रीम एंडला आपलं स्लोपिंग साइड आहे। आई विल गो फॉर द स्केच सो दॅट यू विल गेट द आयडिया। जस्ट अ मिनिट, just a minute। So this is our top surface and this is our slanting edge, downstream end we can say, we were discussing about। Okay, and for upstream end we did a practice। what practice we have, we had an stone pitching for that upstream end, and due to that stone pitching we were able to protect its slope। Now for downstream, that is for downstream end, what we used to go for, we used to go for berms। यानी कि क्या करने का, we have to make this soil as a sharp and we have to go for a trench like this, a small trench, vertical trench like this। okay, this is a small channel we can say and we have to connect it। so क्या होगा, जो भी मैंने यहाँ पे बहुत क्लोज दिखाया है, आई विल गो फॉर अनदर वन। ओके, यहाँ पे बहुत क्लोज हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे तो at a suitable distances we used to go for a small trench like this, and this trench will be connected। अभी क्या है, एक क्रॉस सेक्शन है, this is a cross section, so this is going to run यानी कि ऐसे ऊपर, यानी कि along the length this trench will run, so that whatever the water is flowing over the surface it will be collected this in this trench। okay, and at the last at the point where we have an outlet, at that point we used to go for the collecting those all the trenches, those are called as berms। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं इस साइड में, ये एक बर्म हो गया। दूसरा बर्म हमारा यहाँ पे कहीं पे तो रहेगा likewise, so that whatever the water which is flowing over this surface in between we can say, or sorry in between this surface we can say, this whole water will be collected in this trench। इस ट्रेंच में कलेक्ट हो जाएगा और दैट ट्रेंच विल बी गेट कलेक्टेड, ट्रेंच विल बी कनेक्टेड टू द आउटलेट एंड फ्रॉम दैट इट विल बी टेकन आउट टू द डाउनस्ट्रीम एंड। यानी कि यहाँ पे हमारा डाउनस्ट्रीम एंड रहेगा, ये डाउनस्ट्रीम एंड में उसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे। सो लाइकवाइज बॉम्ब्स विल बी कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द और टू प्रोटेक्ट द downstream slopes we can say। okay, so this is the mechanism for the percolation tank। okay, is you have any doubt then you are free to ask। so next scheme is the बंधारा irrigation। तर बंधारा irrigation हे बऱ्याच जणांनी बघितलेलं असणार आहे। स्मॉल छोटे छोटे ओढ्यावरती वगैरे बांधलेले बॅरियर्स असतात, रबल मॅशनरी असते बऱ्याच वेळा। number of the times rubble masonry, unconsoled rubble masonry used to be there in, and which is mainly they are constructed for the store of a small amount of water and diversion of water।
Okay, that is it's a divergent weir from the from which the direct irrigation is practiced on the cross section of बंधारा is shown over here. म्हणजे काय केलं याच्यामधून बऱ्याच वेळा ओढ्यामधलं पाणी डायव्हर्ट करण्यासाठी किंवा नदीमध्ये किंवा इतर ठिकाणी काय केलेलं असतं, जिथून आपला सोर्स असतो पाण्याचा, तिथं हा छोटा बांध घातला जातो आणि त्याच्यामुळे काय केलं पाणी डायव्हर्ट करून डायरेक्टली इरिगेशनला वापरलं जातं आपल्याला, मीन्स विदाउट एनी लिफ्टिंग अँड ऑल दोज थिंग्स. But if you want to have a lift, in that case we used to require to store the water. मग याचा जर का आपण सेक्शन बघितला, if we look into the cross section or the details of the parts, component parts, we can say, then this is here we are finding this is a general soil surface. हा आपला इथला काय आहे, जनरल सॉइल सरफेस सुद्धा एक्सकॅव्हेट केलेला आहे पूर्णपणे. एक्सकॅव्हेट करून सॉइल केले, इथं काय केल्यानंतर ना हे कॉन्क्रीटचं लेअर टाकलेलं आहे, त्याला आपण ऍप्रॉन असं म्हटलं. दिस इज अ कॉन्क्रीट लेअर as like an as like a slab, we can say. Time being we'll consider as like a slab, as like a slab. The apron is there in concrete layer is there, then आपण apron असं म्हणतो. Apron means what? To protect us, to protect the bedrock. आणि की काय केलं आपण इथं हे फाउंडेशन इथं डिगिंग केलेलं आहे कुठपर्यंत, फाउंडेशन रॉक पर्यंत. त्याच्यावरती आपण हे फॉर प्रोटेक्शन पर्पज, प्रोटेक्शन कशापासून करायचं आहे, आफ्टर कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस बंधारा. बऱ्याच वेळा काय असतं की स्मॉल बंधाराज आर नॉट प्रोव्हाइडेड विथ द गेट्स. स्मॉल बंधाराज आर नॉट प्रोव्हाइडेड विथ द गेट्स. दे डझंट हॅव द गेट्स. इट मीन्स आफ्टर गेटिंग अ फुलफिलमेंट or after getting a full capacity, full supply level here shown, the water is to spill over it. म्हणजे काय होतं, त्याच्या टॉप वरून पाणी बरोबर नंतर ना वरून व्हायला सुरुवात होते, आणि वरून पाणी जर का व्हायला लागलं तर काय होणार आहे, इट इज गोइंग टू स्ट्राईक. वरून पाणी काय होणार आहे, हे पाणी बंधाराच्या आपली जी काय आपली वॉल होती बंधाऱ्याची, त्या भिंतीपर्यंत इथपर्यंत अपस्ट्रीम साईडला स्टोअर झालं, आणि पाणी नंतर ना या भिंतीवरून खाली डाऊनस्ट्रीम साईडला पडणार आहे. मग जर का ते डाऊनस्ट्रीम साईडला पाणी पडायला लागलं तर त्यावेळेस काय होणार आहे, इट यूज टू हॅव सम व्हेलॉसिटी अँड इट यूज टू at the time of the striking it is to exert a impulsive force. मग जर का त्यावेळेस ते तसं हाय व्हेलॉसिटीचं पाणी जर का जमिनीवरती आहे तसं पडलं डाऊनस्ट्रीम साईडला, तर इट रिझल्ट्स इन अ इरोडिंग द सरफेस. ते काय करणार, जो काय आपला पार्ट आहे तो पार्ट काय करणार आहे, तिथला इरोड करतो, म्हणजे इरोजन होतो आणि तिथं काय खड्डा पडतो. and if there is a formation of the pit, in that case structure is going to ultimately collapse. Why is it so? Because when the water will be the less flowing over then it is going to strike so close to the downstream end. जर का पाणी बाहेर जाऊन पडणार कमी असेल तर त्या केस मध्ये पडताना कुठं पडणार, क्लोज टू द डाऊनस्ट्रीम साइड, म्हणजे याच्या बरोबर जो याच्या टोच्या ठिकाणीच पडणार आहे, हे याच्या अतिशय क्लोज जवळ पडणार इथं. मग जवळ पडलं की काय होणार, इथलं सरफेस इरोड होणार, इथली माती निघून जाणार. रबल मॅसनरी आहे तिथलं पूर्णपणे आपली बाइंडिंगसाठी आपण जे वापरलेली मॉर्टर असणार आहे ते मॉर्टर निघून जाणार, आणि स्ट्रक्चर काय होतं, हळूहळू लीक होतं आणि स्ट्रक्चर आपलं कोलॅप्स होतं. सो टू अवॉइड दॅट वी यूज टू गो फॉर द laying of an apron, that is a concrete layer we can say, so that when the water at some velocity is going to strike over it, there will not be any sort of a erosion we can consider over here. Okay, then slopes are shown over in 1:5, 1:5, and 1:10. Means it is generally for the bandharas, those are constructed in a rubble masonry. The vertical upstream side is near about vertical. The upstream side which is facing the stored water, the side which is facing the stored water, that we used to consider as an upstream side. That upstream side used to be nearly vertical, whereas the downstream side used to have a slope. Why? Because if we will have an material to the downstream side in a abundant quantity, then it is going to increase the weight, and as the weight is going to increase, it means that the whatever amount of water which is stored on upstream side, that force exerted by that water will be get balanced by the self weight of that structure. So for bandharas, rubble masonry means the weight will be the huge one, no doubt. And again we are making the downstream end somewhat flat, so that there will be the additional weight we can say at the basement, so that the it will sustain and it will balance the active force which is acting from the upstream side. Okay, then when the bandhara used to get fulfilled, ज्यावेळेस पाणी बंधाऱ्यामध्ये पूर्णपणे भरतो त्यावेळेस नंतर काय करतो आपण, हे टॉप वरून बंधाऱ्याच्या पाणी साईडला पडणार आणि त्यानंतर ना डाऊनस्ट्रीम एंडला जाऊन पुन्हा पुढे ओढ्याला मिळून नंतर पुढे जातो. तिथं कटस्टोन कोपिंग म्हटलेलं आहे. तर कटस्टोन कोपिंग म्हणजे मीन्स व्हॉट,
बऱ्याच वेळा काय होतं की पाणी जर का बंधाऱ्यावरचं आपण ह्याच लगेच खाली पडू दिलं, लगेच ह्याच खाली पडू दिलं तर काय होणार, देर विल बी द कंटिन्युअसली दिस सरफेस विल बी द वेट. जे काय डाऊनस्ट्रीम एंड जे असणार आहे डाऊनस्ट्रीम एंड काय असणार आहे, काय होईल, कंटिन्युअसली पाणी याच्यावरती पडत असताना ही पाण्याने काय होणार, ओली राहणार. देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द अल्गीज एक्सेट्रा, शेवाळ वगैरे वाढणार, त्याच्यामुळे काय होणार, सरफेस इरोड होणार. सरफेस इरोड होऊन काय होणार, स्ट्रक्चर आपलं कोलॅप्स होणार. So to avoid that the direct contact or directly movement of the water over the downstream side, what we used to do, we used to uh, allow that water, or we used to escape the water away from the body of a bandhara. मग ते एस्केप कसं करायचं, पुढच्या साईडला कसं फेकलं जायचं, सो फॉर दॅट वी यूज टू यूज दिस कट स्टोन कोपिंग. Coping means what? Coping is used to restrict the movement of the water inside the wall. Isn't it? Coping ला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये, कुंभी म्हणतो. It's for protection. So likewise, here used to sometimes there used to have a stone like this extending downstream side. म्हणजे इथून सुरू झाला तो आणि हा डाउनस्ट्रीमला एक्सटेंड झाला आणि त्याच्यामुळे काय होणार, when the water is going to flow over this, it will, instead of moving directly downward, it will move over this and it will be get thrown away as like a throttling, as like a throttling or a drip action which we used to have for our chajjas. For the chajjas we used to have a throttling. So likewise we used to have a throttling by a cut stone coping. Clear? This is about a bandhara. It is a small bandhara which is not having any openings or not having any operating gates we can say. म्हणजे याला बऱ्याच वेळा कोणत्याही प्रकारचं गेट वगैरे दिलेलं नसतं, दरवाजाला लावलेले नसतात. म्हणजे याची होल्डिंग कॅपॅसिटी कमी असते, येणारा वॉटर प्रेशर कमी असतो आणि कारण वॉटर स्टोअर केलेलंच कमी झालं, तर त्याच्यामुळे काय होणार, if we want to use this for irrigation by diverting the water, then it will work only during an monsoon season. जर का आपण हा बंधारा only for a diversion purpose if you have used only for a diversion, म्हणजे काय, ओढ्यामधलं पाणी आपण काय करतोय, दुसरीकडे डायव्हर्ट करतो शेताकडे आणि तिथं आपण इरिगेशन करतो. in that case it will be required to have the proper water level throughout the year. जर का आपण वर्षभर याचा वापर करणार असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला throughout the year it will be required to have a water inside it. Clear? But number of the times as a small holding is there, so farmer used to go for lifting the water once the water level goes on reducing and reducing. Generally they used to yield the water for a season only. एका क्रॉपचा सीझन फक्त पुरतो, एका क्रॉपला पुरेल एवढंच पाणी जास्तीत जास्त याच्यामध्ये स्टोअर होऊ शकतं. बिकॉज आय हॅव ऑब्झर्व सच टाइप ऑफ द बंधाराज इन अवर रिजन. आमच्यातल्या ओढ्यावरचे मी बघितलेले आहेत, त्याच्यामुळे मी सांगतोय. मी काही ठिकाणी ज्या ओढ्यांची कॅपॅसिटी खूप मोठी असते त्या ठिकाणी बंधाऱ्याची क्षमता सुद्धा खूप मोठी असते. त्या ठिकाणी जे बंधारे असणार, ज्या वियर्स असणार, those weirs used to have a huge capacity. So in those cases they are provided with an opening gates etc to protect them from the flood condition or to protect them from high pressure water pressure we can say, and for the diversion of the water. So this will be used for diversion of water and to enhance the groundwater table by percolating the water in the soil. It will be a KT weir. This is an cross section of a solid bandhara. Here you will find that number of the times the bandharas are also provided with an pathway, road दिलेला असतो वरच्या बाजूने construct केला असतो, that may be up to the 6 to 7 feet width road we used to go for, so that in a non-monsoon season or in a monsoon season also, that is used to connect the two banks of an a small river or a stream. दोन्ही कडा जोडण्यासाठी बऱ्याच वेळाचा वापर केला जातो त्या रस्त्याचा, पॅनलचा we can say. म्हणजे ज्या वेळेस याच्यावरून पाणी वाहणार नाहीये त्यावेळेस आपण त्याचा आपण वापर करू शकतो. दोज आर नथिंग गार्ड स्टोन्स. गार्ड स्टोन्स आपण पाहतो बघा, टू इंडिकेट द मॅक्सिमम फ्लड लेवल अँड टू रिस्ट्रिक्ट द मुवमेंट ऑफ द movement or transportation we can say. Likewise, and if this is an having a somewhat larger capacity, in that case we used to have a scour hole also. Scour hole is generally used to remove the debris or the whatever the sedimentation used to occur on the upstream side,
To remove those all the sediment particles, we used to have an scour hole or scour pipes. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं की त्या पावसाच्या पाण्याबरोबर वाळू, माती, खडे वगैरे होऊन जातात आणि ते काय होतं इथं बरोबर साचलं जातं. That is a sedimentation. And due to which the water holding capacity or the storage capacity of our Bandara or that barrier goes on reducing. The capacity काय होते आपली कमी होते. So to maintain that capacity, we will be required to remove that all the debris, and to remove those debris, we used to provide a scour hole. म्हणजेच काय एक पाईप सारखं स्ट्रक्चर दिलेलं असतं. And while operating that, we used to stir the material. इथे जे मटेरियल असतं ते मेकॅनिकली स्टर केलं जातं. स्टर करण्यामध्ये आपण ढवळणे म्हणतो, मिक्स केलं जातं, हलवलं जातं. As like an the operation we used to do at the time of the preparation of the काय म्हणतो ते आपण दही सॉरी ताक करताना आपण कर्ड पासून बऱ्याच वेळा काय करतो, रवीने आपण घुसळून घेतो. Likewise they are used to mechanical stirrers. By mechanical stirrers we used to stir the whole sediments, and then we used to open this opening, and they used to have generally a larger slope, so that by gravity all the material will be get removed. Okay, so for that removal of all those debris, here we used to have the such type of the structure, that is a opening, that is pipe, we can say connecting pipe, which is called as a scour hole. Okay, then the next part which we want here, we are finding that full supply level, that in then the height of the maximum high flood level, 3 to 4 meter, etc., etc., flood bank top, etc., etc. Those are as per the design calculations we used to get. Then next one is the Kolhapur type weir. KT weir आपण म्हणतो बघा त्याला. Kolhapuri type बंधारा आपण त्याला म्हणतो. Number of the times we are observing that this is there in our Pandharpur also. In the Pandharpur, nearby the old stone bridge, आपला जो जुना दगडी पूल आहे त्याच्या वरच्या बाजूला KT weir आहे, कोल्हापूर टाइप बंधारा आहे. The purpose of the construction of that KT weir is to have a firm supply of the water for a drinking purpose for the Pandharpur city and for the Sangola also. Because for the Sangola, the lift has been there, water has been lifted from the Pandharpur, and it has been provided to the whole Sangola Taluka and all the villages of the Sangola Taluka, we can say. So for such type of the mechanism, that is means where we doesn't have a firm supply of the water, and we have a nearby the village or the towns for which we are having only that is a supply of the water. म्हणजे जर का आपल्याकडे एखादं शहर असेल, त्या शहराला पाणी पुरवठा करणारा पूर्वीचा जो ओढा किंवा जी नदी असेल, ती नदी जर का सध्याला पेरिनियल नसेल, म्हणजे annual throughout year water तिला नसेल, in that case we require to store the water and we have to supply that water for a drinking purpose. So for that purpose, number of the times such type of the KT weirs are constructed. So this is a top view of the KT weir. So if we look into the top view, then those are the piers. This is nothing but the pier. Okay, this is a pier, and this is the openings. Yes, this is slot small. This is the first slot and this is the second slot. Those two are the slots of the gates. ह्या दोघांच्या मध्यंतरी काय झालं, opening. So this is a one pier and this is the adjacent pier. So in between those two adjacent pier, this is the opening provided to remove the excess water or to surplus water or to allow the water to move from upstream side to downstream side. So here this is the upstream side, this is the downstream side, and water will be moving in between those two piers. And to control that, for the KT weirs generally having the larger capacity, holding capacity, they used to have the two openings, two doors we can say. प्रत्येक opening मध्ये दोन door provide केले असतात. This is upstream and this is a downstream door, and they are close to each other. The दोन door का provide करायचे? Number of the times you may observe that for the dam also they used to have only one door. Dam used to have so huge capacity, but it used to have only one door. But for a weir bandhara we are talking about, and there is a two doors. Why is it so? Because the gap here, if you are finding, the gap is somewhat more, and
it becomes difficult to have installed a such type of the what we can say large bearing capacity or larger strength material. जे काही मटेरियल आपण वापरणार आहे, जी प्लेट असणार आहे मेटलची, त्या मेटलच्या प्लेटची जास्तीची जी कॅपॅसिटी असणारी आपण वापरू शकतो, बेंडिंग कॅपॅसिटी जास्त वापरू शकत नाही कारण कॉस्ट वाढते. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट व्हॉट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू गो फॉर gates two gates or number of the times instead of that metal sheet here the wooden planks are also लाकडाच्या फळ्या वापरल्या जातात. So if you provide that wooden planks, if this is on a top view, it means that it will have an height above this. याच्यावरती उंची असणार आहे याची. Generally about 3 to 6 feet we can say. So wooden plank will be up and hardly a half feet or 1 feet we can say. Then above that another wooden plank will be aligned. Likewise we have to align. So in between those two wooden planks, लाकडाच्या फळ्या ज्या आपण एकावरती एक जर ठेवत जाणार आहे, त्या ठेवत गेल्यानंतर काय होणार आहे, there will be the gap in between them. And through this gap there will be a movement of the water. म्हणजे काय होणार, from that now there will be leakage. So if this is an upstream gate we can say, then there will be leakage from this gate. मग हे लिकेज झाले पण आपण कंट्रोल नाही करू शकतात. मग ते कंट्रोल कुठे करायचं, we have to go for another one layer of the wooden planks. म्हणजे इथं पुन्हा या गेट मध्ये आपण काय करणार, पुन्हा एकदा आपण लाकडांच्या फळ्या एकावरती एक ठेवून जाणार. So that whatever the amount of water is got leaked from the first gate, it will be what obstacled or will be get stored by this next layer. But this next layer is also a wooden plank. It will also have the gap in between the two planks. दोन लाकडाच्या फळ्यामध्ये इथेही पुन्हा गॅप असणार आहे व्हर्टिकल प्लेन मध्ये. मग त्या जॉइंट मधून पाणी जाणार, लिकेज होणार. So how to control it? So for controlling that, in between those two planks, whatever the gap is to exist, in that gap, number of the times the black cotton soil is used. Poured. म्हणजे काय केलं होतं, ह्या लाकडाच्या फळ्या इथं आपण एकावरती एक ठेवल्या, इथं दुसऱ्या बी एकावरती एक ठेवल्या. लाकडाच्या फळ्या मी एक्झाम्पल म्हणून लाकडाची कळी घेतलेली आहे, तर ह्याच्यामधून लिकेज होत आहे, मग ते बंद करायचंय. मग काय करायचं बंद करण्यासाठी, याच्यामध्ये काय केलं जातं, ह्या गॅप मध्ये थ्रू आउट ब्लॅक कॉटन सॉइल वापरले जाते, तर त्यामध्ये टाकली जाते, म्हणजे पोर केली जाते. तर ब्लॅक कॉटन सॉइल का वापरायची, कारण ब्लॅक कॉटन सॉइल जर का आपण टाकली याच्यामध्ये, जर का वरून पाणी इकडून साईडने आलं या बाजूने, त्याच्यामध्ये पाणी किती काय होणार, सॉइल पार्टिकल्स स्वेल होणार. आणि सर्वात जास्त स्वेलिंग हे ब्लॅक कॉटन सॉइल होतं. जर का ती स्वेल झाली म्हणजे काय झाली, फुगली आपल्या भाषेमध्ये, स्वेल झालं काय होणार, इट विल due to the swelling, its volume will increase, and due to increase in volume, these planks will be moved or pushed in a upward direction, and those will be moved in downstream direction. म्हणजे इथल्या लाकडाच्या फळ्या खाली ढकलल्या जाणार, इथल्या वरती ढकलल्या जाणार, आणि बरोबर जो गॅप होता मधला, तो गॅप हा पूर्णपणे पॅक. सो लाईकवाइज टू अचीव द कम्प्लीट blocking of the water, we have to use the black cotton soil in between those two, or in the series of the gates we can say. This is about the gates. Then after that, here we are finding those small structures. So what will be those small structures? This is a top view, so you will find that this is a downstream end, this is the top of the pier we can say here, and this is nothing but the cutup we can say. So those small structures which you are finding, those are nothing but the guard stones. Here the name is shown, guard stones. Why the guard stones are used? Because number of the times the top portion of the cantilever is used for the movement of the animals and the human beings. बऱ्याच वेळा याच्यावरून व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक सुद्धा पास केलं जातं, मूव्ह केलं जातं. सो व्हेन देयर इज अ फ्लड कंडिशन, in that case, for indication of the alignment or indication of the existence of a top portion of the pier or the roadway we can say, we used to have a guard stone. आणि बऱ्याच वेळा काय ते इंडिकेशन असतात, ते म्हणजे त्यासाठी if the water used to move from the above the guard stone, then whole traffic is used to be restricted. ते रिस्ट्रिक्ट करण्यासाठी आपण काय करतो, कंपल्सरी गार्ड स्टोनचा यूज करतो, जेणेकरून आपल्याला इथून काय इंडिकेट होतं की इकडून या बाजूला रोड संपतोय, एंड होतोय. सिमिलरली फ्रॉम दिस ऑल्सो, दिस टुवर्ड दिस साइड द रोड इज एंडिंग. For that purpose, the guard stones are used. Now, if you consider the general dimensions, general I am talking about. So this is a 2-meter gap in between the two piers, means adjacent piers are at a distance of 2 meters from the
each other, and the width of individual pier is shown over here as a 1 meter. Then uh, generally the length here we can say the length of the one pier is about 30 meters. About 30 meters I am talking about. It may increase, it may decrease as per like, or it may be up to the 6 meters maximum. I'm talking about 6 to 7 meters. Here it may be a 6.3 meters. This is a 6.3 meters. This is one of the ideal case I have considered over here. This is the width we can say. Then the top width of the roadway is a 4.25 meters. Okay, means generally means about the 12 to 13 feet the top surface of the road is provided over here for this case. Then here the anchor blocks are also provided here. Somewhere you will find that for this pier, because at the time of the operating the gates we need to move down and we need to move up. आपल्याला बऱ्याच वेळा खाली उतरावं लागतं आणि वरती यावं लागतं. So for that during that operation we need to have and some anchors, and for that the anchor bars are provided. This is a central line. Okay, then here in a continuation you will find the next another piers. Now this is the direction of the flow. Now we will see in the cross section. This is a top view. This is the cross section I have shown over here in I have considered. Here we are finding that this is a one pier. This is the one of the pier we can say. This is the bed foundation. This is a bed foundation over which the pier is constructed, and this was the roadway which I was discussing about. This is a roadway 3.65 meter to 4.25 meter. Likewise the dimensions are there. It doesn't matter now for understanding purpose. Don't consider or don't bother about the dimensions. Just understand the what are the component parts are there. Then this is a deck slab we can say, top slab over which the traffic will be there, and those are the anchor bars about 22 millimeter high. Those are provided for the having the access, that is to go inside and to reach at the downstream end or at the basement we can say, and to come on the upstream side. Anchor bars are provided. And here at the downstream side, this is nothing but our spillway. Okay, spillway, this is generally shape is like an ogee, that is a reverse S we can say, so that whatever amount of water will be released from this, it will be released on the surface only, and it will be aligned over it, so that the rate of the erosion of the material of the body of that foundation and the downstream rock bed will be the minimum, or will be the less and less. Okay, so this is about a KTVR. It is a plan and section we had seen over here. Then the next part I think so is about, just a minute, this is the end here. Here this is our end of the unit, that is the irrigation. And the next lecture we will start for the next unit, that is the soils and different types of the crops, then suitability of the soils for different crops, etc., etc. That part we are going to see into the next